Good morning, all of you. So, today we are going to start with your seventh chapter, that is Education and the British Rule. So, basically, what we are going to read in this chapter is that how Britishers they transformed the traditional education to modern education. ठीक है, वट वर द नेसेसिटीज़, क्या ऐसी ज़रूरत थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन इंडिया में यूज़ होता था, दैट वाज बहुत शिष्य और गुरु का जो गुरुकुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन हम यूज़ करते थे, उसे चेंज कर उन्होंने उन्हें ऐसी क्या नीड्स आई दैट दे फेल्ट दैट इंग्लिश शुड बी टॉट टू द पीपल. ओके, सो बेसिकली सी हियर फ्यू डेट्स आर गिवन. 1813 the Chartered Act, 1835 Government of India Act, 1854 Wood's Dispatch, and 1857 establishment of Calcutta, Bombay and Madras universities. Okay, so if just see one thing, in 1857, like in the previous chapter you read, your first war of independence broke out in 1857. ठीक है, 1857 में एक तरफ वॉर चल रही थी कैलकटा में ही. ठीक है, आपको पता होगा दैट कैलकटा में ही वॉर चल रही थी और लोग इंडियन सिपॉयज, इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे, और दूसरी साइड दे वर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय इट, बट इन द सेम ईयर दे वर ओपनिंग यूनिवर्सिटीज देयर. ओके, सो व्हाई वर दे इन सच अ हरी टू ओपन द यूनिवर्सिटीज? ठीक है, वो हम जानेंगे. लेट अस सी. The English East India Company and its officers encountered the traditional system of education when they came to India in 18th century. Initially, the company did not concentrate on the consolidation of their political. Company only concentrated on the consolidation of their political hold over Indian territories, but did not interfere in the existing system of education. So when Britishers, that was when English East India Company, they came to India, they never फोकस्ड ऑन एजुकेशन. उस समय उनका प्राइम फोकस था पॉलिटिकल एक्सपेंशन. वो चाहते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पोजीशन उनके हाथ में आ जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज उनके हाथ में आ जाए. ओके, सो टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन वर द टू थिंग्स दैट दे वर फोकसिंग ऑन. दे नेवर फोकस्ड ऑन एजुकेशन. उनका कभी फोकस, जब वो आए थे उनका कभी फोकस एजुकेशन नहीं था. However, the British administrators, along with many other social groups, felt the need for fundamentally different kind of education. These groups were, so gradually what happens, when you initially come to a place, you do not realize it. But gradually when you start living in that place, you start realizing the problems. So then they realized the problem that अगर लोगों को English नहीं समझ में आएगी, then ruling them would be difficult. And apart from that, what would be the thing is that they would not have working force with them. उनके पास काम करने वाले लोग बहुत कम होंगे. Okay, so keeping all these criterions in the mind, what they started doing is they started preparing a group of educated laborers. वो चाहते थे that Indians would learn education and they would act like a working force for them. And apart from that, और भी कुछ लोग थे जो ये चाहते थे. Let us see. The Christian missionaries who believed that modern education would undermine the faith of Indians in their own religion and lead them to adopt Christianity. So Christian missionaries, जो लोग उस समय Christianity को popularize कर रहे थे, वो भी चाहते थे that अगर लोग English पढ़ेंगे, since Christianity was one such religion that was found in the Western countries. ठीक है, ये Western countries में की religion है. So people Christian, basically Christian missionaries, what they felt that अगर इंडियंस जो हैं वो एजुकेटेड हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो वो क्रिश्चियनिटी को बेटर समझ पाएंगे एंड दे माइट कन्वर्ट देमसेल्फ. ठीक है, और देयर फोकस वाज कन्वर्जन बिकॉज व्हेन यू हैव लार्ज पॉपुलेशन, एनीथिंग दैट यू पास, एनीथिंग दैट यू आस्क पीपल टू फॉलो, यू विल गेट मैक्सिमम सपोर्ट. ठीक है, इसलिए वो चाहते थे दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट कर लें. Now, the indigenous social reformers such as Raja Ram Mohan Roy believed that modern education was necessary for eradication of social evils like sati and opposition to widow remarriage from Indian society. Okay.
So your Raja Ram Mohan Roy, who is also called as father of modern India, he also believed that लोगों को पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है लोगों के लिए. Why? Because he felt that education is the only force, पढ़ाई लिखाई अकेला एक ऐसा फोर्स है जो कि इराडिकेट करेगा सोशल ईवल्स को. जो हमारे कंट्री में जो सोशल ईवल्स थी, जैसे सती प्रैक्टिस होती थी. सती, यू ऑल नो व्हाट इज सती. आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, द वुमन और यू कैन से द वाइफ्स वर फोर्स टू बर्न देमसेल्फ अलाइव विद देयर हस्बैंड्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल अपोज्ड विडो री मैरिज. वो विडो अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उन्हें री मैरी नहीं करने देते थे. एंड एट दैट टाइम, एट वेरी टेंडर एज, गर्ल्स to become widow, because the age gap between the husband and wife used to be so much. Like suppose a 40-year-old man used to get married to a 20-year girl, so definitely the husband will die first. So at the age of 30-35 they used to become widow, and they had to lead a very miserable life. अभी जैसे widows की life है, उस समय वैसे widows की life नहीं होती थी. They were supposed to wear only black and white, two colors. They were not allowed to wear any other color. Apart from that, they had to not eat एनी स्पाइसेस. कोई मसाला नहीं खाती थी वो, ठीक है. बहुत ही प्लेन फूड खाती थी. दे वर नॉट कॉल्ड इन एनी हैप्पी ओकेजन्स, ठीक है, जैसे बर्थ, मैरिज. दे वर नॉट कॉल्ड. ट्रेजेडी वाज सच दैट दे वर नॉट कॉल्ड इन देयर ओन किड्स मैरिज. खुद के बच्चों के भी की शादियों में भी उन्हें नहीं बुलाया जाता था. उनकी एंट्री बैन रहती थी, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज इनऑस्पिशियस. ओके, नाउ European commercial and mercantilist class hope to expand the market of British good through a class of educated Indians. So यूरोपियन कमर्शियल और जो मर्चेंटलिस्ट क्लास थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड में इंगेज थे, वो भी चाहते थे दैट पीपल शुड नो मोर लैंग्वेज. लाइक टुडे इफ़ यू हैव टू ट्रेड विथ कोलकाता or you have to trade with a person living in Kolkata, the things would become more convenient for you if you know Bengali language. Okay, so for this purpose the traders even wanted to Indians to learn English, okay, or educate themselves. The British government also realized the need for introduction of modern education, English education. So even British government also they felt कि नहीं, लोगों को English या English way of education, English education system में Indians को डालना चाहिए. Now see why, what were the ways. Now if educated Indians were employed, it would reduce the administrative cost drastically and also ensure the loyalty of Indians. So first reason was that अगर Indians पढ़े लिखे होंगे तो वो उनकी कॉस्ट को, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करेगा. बिकॉज पहले वो क्या करते थे, पढ़े लिखे लोगों को ब्रिटेन से बुलाते थे, ठीक है, यूरोप से लोग आते थे और वो इंडिया में वर्क करते थे. सो दे वर पेड हाई, उनको सैलरी देना पड़ता था, उनको एकोमोडेशन देना पड़ता था, फूडिंग लॉजिंग सबका ध्यान रखना पड़ता था. वो कहाँ रहेंगे, वो क्या कैसे खाएंगे, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता था. बट अगर कोई इंडियन है जो एजुकेटेड है तो उसकी सैलरी भी कम होगी क्योंकि वो खुद के देश में ही काम कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट फूडिंग और लॉजिंग का कोई टेंशन नहीं रहेगा. उसकी खुद की घर है, उसमें वो रह सकता है, उसका फैमिली है, विल प्रोवाइड फूड टू हिम और हर. ओके, सो वन सच प्रॉब्लम वाज दिस, एंड अपार्ट फ्रॉम वन सच प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व लाइक दिस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉयल्टी होती. आप कभी भी किसी भी लोगों के लिए काम करेंगे और वो आपको पैसे दे रहे हैं, डेफिनेटली यू विल बिकम लॉयल, बिकॉज आपके घर की खर्च, आपकी लाइवलीहुड उन पर डिपेंडेंट है. सो दैट वुड बिल्ड अ क्लास वेयर इंडियंस वुड सपोर्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज दे वुड फील दैट हमारे घर का लाइवलीहुड ब्रिटिशर्स की वजह से ही चल रहा है, उनकी नौकरी से चल रहा है. ओके, now modern education, though glorification of British administration would make people of India reconcile to British rule. So second thing was that जितना भी जैसे भी लोग पढ़ाते वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ग्लोरीफाई करके बताता. इंग्लिश एजुकेशन जो था वो ब्रिटिश रूल को इतना अच्छे तरीके से पॉजिटिव सेंस में इंडियंस को बताता पढ़ाइयों में, दैट लोग एक्सेप्ट कर लेते ब्रिटिश रूल को. दैट अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं देन दैट इज़ फॉर द गुड ऑफ इंडियंस, ठीक है. वो इन अ वे कन्विंस कर लेते अपने फॉर्म ऑफ एजुकेशन से दैट इंडिया में ब्रिटिश रूल इज़ पॉजिटिव रादर देन बीइंग नेगेटिव. Now, regular supply of qualified Indians to help in administration of law
सिविल और क्रिमिनल इन द कोर्ट वॉज रिक्वायर्ड. सो एक रेगुलर सप्लाई हो जाता. अगर लोग इंडियंस पढ़े लिखे होंगे तो एक रेगुलर सप्लाई हो जाएगा. उन्हें जब भी ज़रूरत होगी वो आसानी से लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं. ओके, दे हैड टू नॉट वेट फॉर द यूरोपियंस टू कम ऑल द वे फ्रॉम यूरोप टू एडमिनिस्टर इंडिया. सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. सो रेस्ट the various branches, there were 2 groups of education that we'll be doing tomorrow. Okay, so this is all it. What you have to do is you have to find any 5 middle question answers on your own, and before then that you have to make this timeline in your copies. Thank you.